Hello students, today we will discuss about the next topic of chapter 3 fiber to fabric. In the previous class we discussed about history of clothing, fiber, yarn and fabrics and natural fibers. Our today's topic is plant fibers. So let's move towards the topic. Hello students, let's start the topic plant fibers. Plant fibers obtained from plants are referred to as plant fibers. Cotton, jute, hemp, flax, coir, etc. are examples of plant fibers. These may be derived from fruits called fruit fibers. Means plant fibers may be derived from the fruit of a plant are known as fruit fibers, and examples are coconut and cotton. Next, from a stem called bast fibers, for example jute, flax and hemp. From the jute, flax and hemp stem we get the fiber. And from the leaves called the leaf fibers are, for example, sisal. So let's study about the plant fibers in detail. So our first plant fiber is cotton. Cotton is an extremely popular plant fiber. People prefer cotton clothes especially in summers. The cultivation of cotton started primarily in the Indian subcontinent. मतलब मीन्स इंडिया के आसपास पहले इसका पॉपुलर बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर उसकी खेती बहुत ज़्यादा होती थी. Now it is cultivated in more than 100 countries across the globe. अब पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका कल्टिवेशन होता है. Cotton grows best in the black soil and requires warm climatic conditions. Now next is manufacturing of fiber. How cotton manufacture, कैसे वो बनता है? Cotton plants produces big white flower, as you can see in the picture, cotton balls. Okay, the cotton fibers develop around the seeds and form a cotton ball. इसी तरह का जैसे आप देख सकते हो पिक में दिया हुआ है cotton balls, ऐसा ही होता है. जो भी फार्मर्स रहते हैं they pluck the balls and clean. This process is called the picking. The picking of cotton balls is known as the picking, and subsequently then बाद में the cotton fibers are separated from the seeds by a giant comb like structures. एक comb की जैसा कंघी की तरह एक structure रहता है और फिर उससे seeds को cotton balls के अंदर जो seeds रहता है उसको separate किया जाता है. This process is called ginning. Next, the ginned cotton is sent to the textile mills in bales. मतलब बांध कर गिन्ड कॉटन को, जो कंघी से हम लोग रिमूव कर दिए सीड्स को, और फिर उस कॉटन का गांठे बना दिया जाता है, उसको उस बेल्स बना दिया जाता है, एंड देन इट इज सेंट टू द टेक्सटाइल मिल्स. इन द टेक्सटाइल मिल द कॉटन बेल्स आर ओपनड एंड फर्दर क्लीन्ड. उसके बाद फिर उन कॉटन बेल्स को खोला जाता है एंड देन दे आर फर्दर क्लीन्ड. The long bundles of cotton fibers are transferred to a machine where they are twisted and wound on a bobbin as yarn. उसके बाद long bundles of cotton fibers वहाँ पर बनता है जो कि ट्विस्ट होता है, और बॉबिन मतलब हो गया जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि रील के ऊपर धागा बंधा हुआ रहता है ना, दैट इज द बॉबिन, और फिर उस बॉबिन के ऊपर यार्न को लपेटा जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. Finally, two sets of yarns are placed in such a way that they crisscross each other by the process of weaving. उसके बाद two sets of yarns को इस तरह से crisscross किया जाता है और वो फैब्रिक उससे मतलब बनाया जाता है, and this process is called the weaving. The process usually accomplished in a loom, और ये जो process complete होता है in a loom. नेक्स्ट है, एज यू कैन सी इन द स्पिनिंग इन अ टेक्सटाइल मिल, किस तरह से स्पिन हो रहा है, और प्रोसेस ऑफ वीविंग. नाउ यूजेस ऑफ कॉटन. तो कॉटन फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज है. कॉटन फाइबर्स आर वोवन इनटू कॉटन क्लॉथ्स, डेनिम एंड टेरी क्लॉथ्स. Cotton is a soft, absorbent and breathable natural fiber which making it the perfect fiber for clothing. ठीक है, वो सॉफ्ट है, एब्जॉर्बेंट है, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, ब्रीथेबल है मीन्स हवा को आने जाने के लिए देता है. हम लोग जब पहनते हैं तो हम लोग को कंफर्टेबल इसलिए फील होता है बिकॉज इट अलाउज एयर टू इंटर थ्रू इट, विच मेक्स इट द परफेक्ट फाइबर फॉर क्लोथिंग. It is also called breathing fiber. That is why cotton is known as the breathing fiber. Cotton fabric is used to make clothes, bed sheets, curtains, etc.
Denim is used to make jeans and terry is used to make towels. So these are the different uses of the cotton. So our next fiber is jute fiber. Jute is known as the golden fiber due to its golden brown color, shiny texture and its easy cultivation. ठीक है, उसको golden fiber बोला जाता है because of its brown color, shiny texture and also it is very easily cultivated. In terms of production and consumption, it is the second most popular fiber after cotton. प्रोडक्शन के हिसाब से कंजप्शन मतलब कितना कंज्यूम होता है वो वर्ल्ड वाइड, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर है आफ्टर द कॉटन. कॉटन इज मोस्ट पॉपुलर एंड देन इट कम्स टू जूट. जूट क्रॉप्स ग्रोज वेल इन हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट में इसका कल्टीवेशन अच्छा होता है और वो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से उगता है. इन आवर कंट्री द गैंगेटिक प्लेन इज एक्सीलेंट फॉर द जूट कल्टीवेशन with its rich alluvial soil, adequate rainfall and warm climatic condition. जो हमारे कंट्री में गैंगेटिक प्लेन्स है यहाँ पर बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है जूट का, जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल भी है, एडिक्वेट रेनफॉल भी होता है और वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है. Now next, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूट फाइबर. जूट फाइबर आखिर बनता कैसे है? द जूट फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर दैट सभी फाइबर हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं. कॉटन के फ्रूट से मिलता है और जूट फाइबर जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है. The steps involved in the obtaining jute yarn are described below. The first, the stems are bundled together and soaked in the slow running water. मतलब जो प्लांट रहता है उसको प्लांट को कट करके उसका बंडल बना दिया जाता है जूट प्लांट के, एंड देन इसको स्लो रनिंग वाटर में उसको वहाँ पर सोक कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग और इस प्रोसेस को हम लोग रेटिंग कहते हैं. This helps in rotting the softer part of the stem and thus extracting the fibers. और ये क्या करता है, हेल्प करता है कि रॉट कर देता है सॉफ्टर पार्ट ऑफ द स्टेम को. जो सॉफ्टर पार्ट है उसको रॉट कर देता है. सॉर्टिंग मीन्स सड़ा देना, तो वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है और उससे क्या होता है कि फाइबर एक्सट्रैक्ट करना निकालना इजी होता है. नेक्स्ट, दिस इज फॉलोड बाय द स्क्रैपिंग ऑफ द नॉन फाइबरस मटेरियल. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग. उसके बाद क्या होता है कि स्क्रैपिंग होता है, जो नॉन फाइबरस मटेरियल है उसको फिर वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है. फाइनली द जूट फाइबर्स आर ग्रैप्ड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जूट स्टेम. उसके बाद फाइनली जूट फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द जूट स्टेम. एक्सट्रैक्ट मीन्स निकाल लिया जाता है. स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ जूट फाइबर्स आर डन इन द सेम मैनर एज कॉटन. और फिर उसी तरह स्पिनिंग और वीविंग होता है जैसे कि कॉटन फाइबर्स का हुआ, सेम उसी तरह जूट फाइबर का भी स्पिनिंग और वीविंग होता है. Now next, uses of cotton. कॉटन का यूजेस कहाँ पर है? uses of jute. जूट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल फाइबर. जूट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और अफोर्डेबल फाइबर है. इट इज यूज टू मेक शॉपिंग बैग्स, कारपेट, रग्स एंड गनी बैग्स फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एटसेट्रा. ठीक है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और अफोर्डेबल भी है, तो इसका यूज किया जाता है द शॉपिंग बैग्स, carpets, rugs and gunny bags for the storage and transport of food. Grains like rice, wheat, ये सब में आप लोग देखे होंगे गनी बैग्स में ही आता है जो भी ग्रेन्स रहते हैं.